everyone. In this video, we are going to discuss Introduction to Corporate Governance. This is the first video of corporate governance. Corporate governance is a very interesting subject as good corporate governance leads to sustainable business. So please watch this video attentively. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's start the discussion. Here we will discuss corporate business structure in a business entity. Before discussing what is corporate governance, we should know what is corporate or business structure in a business entity. In the present scenario, business is usually done at a large scale. So this has resulted into creation of corporate or company form of organization. And in company form of organization, the ownership and management are separated. So here the shareholders elects the board of directors to manage the business operations, because shareholders invest their money in the business organization, but they do not manage the running and day-to-day operations of the business. So shareholders elects board of directors to manage their business operations of firm. Then board of directors appoints president, and president appoints treasurer, secretary and vice presidents in the different departments, like vice president finance, vice president in production, vice president operations, vice president marketing. Then managers work under the vice presidents of different departments, like in finance department there's a manager, in production, operation and marketing. So managers work under vice presidents, and the managers appoints the supervisors in the different departments. Then under the supervisors there comes a workmen who are appointed by the supervisors. They are actually involved in the production of goods and services. So this is the corporate or business structure in a business entity. Here we will discuss role of four major groups in a company. As we have discussed the corporate structure in a business company, so what is the role of four major groups in a company? The first group is shareholders. The shareholders are the ones who own stock in the firm, giving them ultimate control. The shareholder primacy model. They do not participate in running and daily operation of the business. कंपनी बिजनेस की कंपनी फॉर्म में शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स कंपनी का स्टॉक ओन करते हैं. दे ओन द शेयर्स ऑफ द फर्म. बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. और शेयर होल्डर्स के पास एक बिजनेस फर्म का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट कंट्रोल होता है, लेकिन वह बिजनेस की रनिंग और डेली ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Then the board of directors work for protecting the interest of shareholders. The board of directors are appointed by shareholders. What is the role of board of directors? They govern and oversee management of the business and responsible for corporate governance. They set policies, norms, rules, code of conduct, mission, vision and goals of the company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बिजनेस की मैनेजमेंट को गवर्न करते हैं और वह बिजनेस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं. बिजनेस के लिए जो पॉलिसीज, नॉर्म्स, रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो बिजनेस के द्वारा फॉलो की जाते हैं. कमीशन क्या होगा, व्हाट विल बी द विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और गोल्स क्या होंगे, वह सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही सेट किए जाते हैं. Then under board of directors there comes a management. The management are the individuals hired by the board to manage the business daily. मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हायर की जाता है बिजनेस की डेली ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए. अंडर मैनेजमेंट देयर कम्स द एम्प्लॉइज, and the employees are hired to perform actual operational work on shop floor, means converting raw material to finished goods. एम्प्लॉइज जो कि बिजनेस की एक्चुअल ऑपरेशनल वर्क को परफॉर्म करते हैं, लाइक इफ इट इज अ प्रोडक्शन हाउस, देन ऑन द शॉप फ्लोर.
शॉप फ्लोर पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो पर्सन काम करते हैं, दे आर द एम्प्लॉयज और द वर्कमैन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द रोल ऑफ 4 major groups in a company. Here we will discuss who are the stakeholders of a company. There are two types of stakeholders in a company. The first one is the primary stakeholders. Who are the primary stakeholders? The stakeholders who are critical to the company's existence and activities, and they directly affect the company or are affected by the company. प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वह स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए, कंपनी के अस्तित्व के लिए और उसकी एक्टिविटीज के लिए क्रिटिकल है, और वह कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और कंपनी भी उनकी एक्टिविटीज के द्वारा डायरेक्टली अफेक्ट होती है. एंड हु आर दोज? लाइक द शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज, वर्कर्स, कस्टमर्स, suppliers. These are the primary stakeholders. Second one is secondary stakeholders. Who are the secondary stakeholders? The stakeholders who are affected indirectly by the company activities and decisions. यह वह शेयर होल्डर्स का ग्रुप है, स्टेक होल्डर्स का ग्रुप है जो कि कंपनी की एक्टिविटीज के द्वारा इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट, मीडिया, एक्टिविस्ट और एनजीओज, रिलीजियस ग्रुप्स, कॉम्पिटिटर्स and environment. So these are the primary and secondary stakeholders. Now the owners or the shareholders do not participate in routine operations of the business. It becomes necessary to assure their interest is protected. In the company form of business organization, ownership and management is different, separated. कंपनी फॉर्म में ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेटेड होती है. सो जो ऑनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वह बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते. सो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए. और मॉडर्न सिनेरियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाता है. सो इन द मॉडर्न सिनेरियो द बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स. तो बीइंग एन सोशल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे, लाइक कम्युनिटी, वर्कर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, मीडिया, कॉम्पिटिटर्स एंड एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. सो एक बिजनेस हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे. So all this is the essence of corporate governance. इसी पर बेस्ड है corporate governance. यह corporate governance का एसेंस है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ साथ अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है. Now we will discuss what is corporate governance. What is the meaning of corporate governance? Corporate governance is made up of two words, corporate and governance. What is corporate? Corporate or corporation is derived from the Latin word corpus, which means a body. The word corporate relates to a large business entity or a large company. And governance, the root of the word governance is from governate, which means to steer. So governance means administering the processes and systems placed for satisfying stakeholder expectation. Governance एक गवर्नेट वर्ड से बना है जो इसका रूट वर्ड है, और इसका मीनिंग है टू स्टीयर, मीन्स टू डिराइव, किसी चीज को चलाना. सो गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? गवर्नेंस का मीनिंग है ऐसे सिस्टम्स और ऐसे प्रोसेसेस फॉर्मुलेट करना, एडमिनिस्टर करना जो कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए फॉर्मुलेट की गई है. So what is corporate governance? So corporate governance is the system by which management of a business entity directs and control the activities on the principles of what principle? Accountability, transparency and ethical practices in best interest of all stakeholders. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट क्या करती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करती है और कंट्रोल करती है कि वह
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करे जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी हो, हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जो वह बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस शुड बी ट्रांसपेरेंट टू इट्स स्टेक होल्डर्स। बिजनेस जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वह उसके स्टेक होल्डर्स के लिए ट्रांसपेरेंट हो, बिकॉज शेयर होल्डर्स भी बिजनेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस एक्टिविटीज में, और बिजनेस को उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो शेयर होल्डर्स भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है क्या उनके हित में परफॉर्म कर रहा है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कम्युनिटी, सोसाइटी, तो वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करे एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, और जो बिजनेस एथिक्स पर बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं वह फॉलो करे, मोरल कंडक्ट फॉलो करे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, जो कि सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। Here we will discuss some of the definitions of corporate governance. The first definition that has been given by Sir Adrian Cadbury in the report of Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance in December 1992. What this definition says: corporate governance is a system by which the companies are directed and controlled. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा कंपनीज डायरेक्ट की जाती हैं और कंट्रोल की जाती हैं। मींस एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कंपनी की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है कि कैसे कंपनी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी और कैसे उन एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए। Another definition according to Monks, Robert and Minunel on corporate governance: the term corporate governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. Corporate governance इससे कंसर्न है एक जिसमें कि एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है किसके बीच में, इकोनॉमिक और सोशल गोल्स। इकोनॉमिक गोल्स की एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस के जो इकोनॉमिक गोल्स हैं अपने प्रॉफिट को और वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, एज वेल एज द सोशल गोल्स की बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, एज वेल एज बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनल। कम्युनल गोल्स मीन्स जो कम्युनिटी के लिए गोल्स हैं उन गोल्स, और इंडिविजुअल गोल्स मीन्स द गोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं दैट आर कंसर्न विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Another definition, the same view is also given by Margaret Blair in his book Rethinking Corporate Governance for the 21st Century, that corporate governance is the relationship between the shareholders, directors, and management of a company as defined by corporate charter, by laws, formal policy, and rule of कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में, और यह किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, कॉर्पोरेट चार्टर, कंपनी का एक जो चार्टर है जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि कंपनी की एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। लॉ के द्वारा, कंपनीज एक्ट के द्वारा डिफाइन किया गया फॉर्मल पॉलिसी या रूल ऑफ लॉ जो हमारे कंपनी की एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं उनके द्वारा है प्रेस्क्राइब किया गया। According to James McRitchie, corporate governance is not an abstract goal but exists to serve corporate purposes by providing a structure within which the stockholders, directors, and management can pursue most effectively the objectives of the corporation. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अब्स्ट्रैक्ट गोल नहीं है बल्कि यह एक ऐसा गोल है जो कि एग्जिस्ट करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस के कॉर्पोरेट पर्पसेस को सर्व करने के लिए, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उस कंपनी का क्या पर्पस है, और वह एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि उसके जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उसके शेयर होल्डर्स और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, और साथ ही जो कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट है वह डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। Here we will discuss the corporate governance system. Corporate governance
steer or drive the organization. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्प करता है. And the core foundation values of corporate governance are, so we have vision, mission, objectives, strategy, and smart goals. So what is vision? Vision एक ऐसा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को 5, 10 या 15 साल के बाद कहाँ देखना चाहता है. मीन्स एक फ्यूचर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड विजन. कि फ्यूचर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सम कपल ऑफ इयर्स वह अपने आप को कहाँ देखना चाहता है, क्या वह पोजीशन अटेन करना चाहता है बिजनेस वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड विजन. And what is mission? Mission is the short term goals to achieve the vision. विजन को अचीव करने के लिए जो हमने अपने फ्यूचर के लिए अपना एक गोल सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, दैट इज कॉल्ड मिशन. की कैसे हम उस विजन को अचीव करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किया गया है. एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड डिपार्टमेंट वाइज. डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है टू अचीव द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रेटजी वह रणनीति है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फॉर्मुलेट करता है, एंड इट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स? Here the smart words denote some meaning. What S S stands for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for timely. So our goals should be specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Means हमारे गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेसिफिक टू द विजन मिशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक, मेजरेबल कि हम उसको मेजर कर सके कितना हम अचीव कर चुके हैं, अचीवेबल कुछ जो हमने गोल्स हैं वो इस तरह के सेट किए जाए कि हम उसको अचीव कर सकें. ऐसा नहीं कि हमने ऐसे गोल सेट कर दिए जो हम इस टाइम पीरियड में अचीव ही नहीं कर सकते. रियलिस्टिक जो प्रैक्टिकल गोल्स है वही सेट किए जाने चाहिए, अनरियलिस्टिक गोल्स सेट नहीं किए जाने चाहिए. एंड टाइमली मीन्स देयर शुड बी सम डेडलाइन, एक टाइम पीरियड और एक डेडलाइन फिक्स की जाए कि जिस टाइम पीरियड में हम अपने उन गोल्स को अचीव करेंगे. अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया जाता तो वह गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते. सो देयर शुड बी ए टाइम पीरियड और डेडलाइन टू अचीव द गोल्स. So keeping governance to be adhered to these values, vision, mission, objective, strategy, and smart goals, a strong system in we must have a strong system in place, and that system consists of what? That system consists of disclosure and transparency, accountability and integrity. What is disclosure and transparency? Disclosure and transparency means the business practices which are followed by a business organization that should be disclosed and that should be transparent to each stakeholders. business organization के द्वारा जो भी business activities perform की जा रही हैं वह उसका full disclosure करे और वह हर एक stakeholder को transparent हो. accountability and integrity. What is accountability and integrity means taking the responsibility by the board of directors for the business operations. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म की जा रही हैं वह उनके लिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो भी बिजनेस ऑपरेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं. एंड व्हाट इज इंटीग्रिटी? understood to describe a person of high moral virtue or one who observes adherence to strict moral or ethical code. एक पर्सन के द्वारा जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं वह उनको परफॉर्म करते हुए बिजनेस के जो मॉरल और एथिकल कोड्स हैं वह उनको एडहियर कर रहा है, उनका पालन कर रहा है. दैट इज अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी. नेक्स्ट वन इज पॉलिसीज एंड नॉर्म्स. तो पॉलिसीज एंड नॉर्म्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पॉलिसीज एंड नॉर्म्स सेट की जाए, इसके द्वारा जो पॉलिसीज एंड नॉर्म्स हैं वो उसके इन वैल्यूज को अचीव करने में हेल्प करते हैं एंड इट लीड्स टू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Corporate social responsibility, as we have already discussed
In the present time, a business organization is assumed to be a social institution. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, बल्कि उसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए है। मीन्स सोसाइटी, पीपल, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, इन सभी के लिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो परफॉर्म की जाती है, दैट ऑल्सो लीड्स टू गुड गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Procedures and processes. Procedures and processes means स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एक बिजनेस के द्वारा कुछ प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस स्पेसिफाई की जाती हैं, जिन प्रोसेसेस को, जिन स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को एक बिजनेस के द्वारा फॉलो किया जाएगा जब वे अपने बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करें। Ethical standard and values. Ethical standard and values means the code of conduct that has been prescribed by the organization, and those ethics, standards and values should be followed by each one working in the organization. Risk management. What is risk management? It is the board that is responsible for determining the nature and extent of risk that the organization is taking. Clearly, all the business houses must take risk to earn the revenue. यह बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर का और कितने एक्सटेंट तक रिस्क ले सकता है। और सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अगर वह अपने रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, रेवेन्यूज को अर्न करना चाहते हैं, तो उनको रिस्क लेना पड़ता है। बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू मैनेज दैट रिस्क। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिस्क लिया जा रहा है उसको वह मैनेज करे, ताकि शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है या फिर शेयर होल्डर्स को ने जो अपनी मनी इन्वेस्ट की है का जो रिस्क है उसको मैनेज किया जा सके और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. Monitoring and internal control also play a vital role in securing the success of a business. Organizations monitoring and control is done by the board of directors, by the internal audit committee, and this ensures good governance practices. Organizational hierarchy. What is organizational hierarchy? As we have already discussed in our previous slide, there is a specified organizational hierarchy in the organization, and organizational hierarchy specifies the distribution of rights and responsibility among different stakeholders. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की होती है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट vice president, then vice president appoint managers and supervisors, then comes a workman. तो ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की क्या स्पेसिफाई करती है? ये स्पेसिफाई करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक हिरार्की पे जो मेंबर्स काम कर रहे हैं, जो पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स। तो यह जो हिरार्की है एक रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेल आउट करती है हर एक हिरार्की के लिए, ताकि वह उन अपने जितने भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई हैं उनका वह यूज कर सकें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एंड दैट इंश्योर्स गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस। Compliance and achievements. What is compliance and achievements? Compliance means board of directors will have to make sure the compliance of code of conduct for the corporate governance. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट किया जाता है जो कि इंश्योर करता है कि वे बिजनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शो करते हैं कंप्लायंस, उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मुलेट किया गया है उसको कंप्लाई किया जाए, उसको अचीव किया जाए। Then is legal and regulatory framework. Companies Act 2013 contains provisions related to board constitution, board meeting, independent directors, general meeting and disclosure requirements. Companies Act 2013 में कि कैसे सभी रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई किए गए हैं, प्रोविजन स्पेसिफाई किए गए हैं, बोर्ड का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बोर्ड की मीटिंग्स कब कॉल की जाएंगी, कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, जनरल मीटिंग कब कंडक्ट की जाएगी, व्हाट विल बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दैट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट
क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो legal and regulatory framework also ensures the corporate governance practices. Board of directors and committees. Yes, board of directors has the responsibility to ensure the corporate governance in the organization as well as the different committees. What are these different committees? Like audit committee, shareholders, grievance committee, risk committee, corporate governance committee, ethics committee. These are the different types of committees, and along with board of directors, these work for ensuring good governance practices in the organization. So good governance is adhered and these values are ensured by this system that we have discussed in this slide. So in this video, we discuss the concept of corporate governance and the further topic we will discuss in the next video. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And do me comments in the comment box whether you like the video.